You were working in an MNC, and what motivated you to leave that MNC for the government cabin? It was always my inspiration to work for a larger public impact. So I was working in the ONGC. There also I could have made my impact. ICOS नाम की भी एक सर्विसेज होती है, बट मुझे भी सर जब ये इस कमेटी का मैं चेयरमैन बना और तब मुझे पता चला कि ICOS नाम की एक सर्विसेज होती है, तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस सर्विस के बारे में आप बताएं। Indian Coast Account Service is what you can say is a secret door to Government of India services, secret door to civil services. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हम लोगों को पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने में आसानी होती है? दिस इज वन पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, आप इंस्टीट्यूट को किस तरीके से देखते हैं कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में पब्लिक सर्विस के एरिया के अंदर और क्या बेटर काम कर सकती है? जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस दौर में हम कई पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने आप में इनकलकेट कर लेते हैं। वन ऑफ द ट्रेट इज डिसिप्लिन। वी आर डिसिप्लिन, वी हैव द एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट लॉज, टैक्स लॉज, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाती है। then we have the analytical ability to understand things, because all these things, all these traits help you in your civil services examination preparation. सो नमस्कार सीए साथियों, मैं सीए रोहित रुवाटिया, चेयरमैन मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी ICAI। आज हम इंदौर में हैं और हमारा आज पहला पॉडकास्ट सीरीज का प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। इस कमेटी के माध्यम से हम मेंबर्स इन सिविल सर्विसेज का पॉडकास्ट करेंगे, जो अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए शेयर करेंगे। सो चार्टर्ड माइंड इन पब्लिक सर्विस के इस कार्यक्रम में आज हम लोग आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं हमारी पहली पॉडकास्ट सीरीज। सो विद दिस आई विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट गेस्ट सुनील साहू जी, जो कि इंदौर से ही बिलोंग करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये अभी आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं। सो थैंक यू सुनील जी फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग राइट हियर, एंड ऑफ कोर्स you have shared a lot of thoughts and your journey to all our participants, but through this podcast I believe we will be able to convey our interest to the larger population of our profession, sir. So my first question to you, sir, you were working in an MNC, and what motivated you to leave that MNC for the government cabin? So basically, Rohit ji, it was always my inspiration to work for a larger public impact. So I was working in the ONGC. There also I could have made my impact. But in government service, the impact of your decision, the impact of your service is larger. You connect and contribute to millions of lives because of your act, because of your decisions, because of your role in policy formulation. So that is one of the core thing that I believe that my contribution towards nation building will make a larger impact by being in the government service rather than being in the ONGC or in being in MNCs or public sector companies. So that is one of the motivation was that I want to create a larger impact. I want to contribute towards the national building. थैंक यू सर। आपने सर इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज के माध्यम से यूपीएससी में एंट्री करी। मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ICOS नाम की भी एक सर्विसेज होती है, बट मुझे भी सर जब ये इस कमेटी का मैं चेयरमैन बना और तब मुझे पता चला कि ICOS नाम की एक सर्विसेज होती है, तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस सर्विस के बारे में आप बताएं, कैसे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस सर्विस के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या नंबर ऑफ सीट्स रहती है, कौन सा एग्जाम उनको देना होता है, तो थोड़ा बेसिक आइडिया आप हमें दे पाएंगे इसके बारे में? So basically, Indian Coast Account Service is what you can say is a secret door to Government of India services, secret door to civil services, because the route of civil services is a general route where all the participants, like from different backgrounds, engineering, medical, in fact commerce, CA, arts, they participate, they compete, and they
get this job of civil services on the basis of their ranking. This Indian Cost Account Services is one of the dedicated exam which is organized or which comprises of only chartered accountants and cost accountants. So those chartered accountants who want to aspire for the civil services career, this route of Indian Cost Account Services is one of the alternative routes other than civil services वाला जो हमारा एक common route होता है. So initially I was also not aware, जैसा आपने कहा कि आपके पास भी जानकारी थोड़े टाइम पहले ही लगी कि इस तरह की भी कोई एक एग्ज़ाम होती है, तो वैसे ही आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर. तो जब मैंने ONGC ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि देयर इज़ दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो in which only 2 professions are given the entry. So Indian Cost Account Service is basically a specialized service where only chartered accountants and cost accountants get entry. But the kind of exposure that you get in this particular service, you get to work in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Department of Revenue, Department of Public Enterprises, Department of Public Asset Management. You get to work in Ministry of Defense, you get to work in Ministry of Home Affairs. आपके पास n number of avenues होते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. I worked in GST department, I worked as a CFO in Indian Institute of Corporate Affairs. So this service gives you a multi-dimensional exposure in various different ministries of the government of India. So definitely it's an alternative route, especially for our chartered accountants, brothers and sisters who want to pursue their career in civil services. ग्रेट सर. एक बहुत अक्सर हम लोगों के बीच में एक प्रश्न आता है कि मैं तो जॉब में हूँ जी, और मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं अपनी तैयारी कैसे करूँ? तो क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मैं जॉब में रहते हुए भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ या मुझे जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि किस तरीके से हमको हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए वाइल वर्किंग? so basically इसमें I have one strong observation. It is always the consistency. अगर आप रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन मैनर में परसिवरेंस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने जॉब के साथ 4 से 5 घंटे इफ़ यू कैन मैनेज विथ योर जॉब, यू कैन बैलेंस दैट. सो डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू लीव योर जॉब. आप अपने जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं. स्पेशली अगर मैं इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एग्ज़ाम की स्पेशली बात करूँ, सो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है, तो बेसिकली जो सिलेबस होता है उसका मेजॉरिटी पार्ट आपकी CA एग्ज़ाम में कवर कर चुके होते हैं. उसमें आपको GST, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन कॉस्टिंग, देन फाइनेंशियल बजटिंग एंड इन सब के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं. जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, दैट लेवल यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर IPCC और CA फाइनल एग्जामिनेशन. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल एग्ज़ाम का नहीं होता है, बट द ओनली डिफिकल्टी दैट यू कैन से comes in the terms of competitiveness, because the exam being competitive, तो आपको कुछ लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ते हैं. सो अगर आपके पास वो कॉम्पिटिटिवनेस है, आप टाइमली और इफिशिएंटली जल्दी से आप क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव द एज. As far as the syllabus part is concerned, syllabus is not very difficult. It's already you have covered in your CA syllabus. Great. सर 2 क्वेश्चन क्विक मैं मर्ज करते हुए आपसे पूछना चाहूँगा. पहला ये कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हम लोगों को पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने में आसानी होती है? दिस इज वन पार्ट. सेकंड क्वेश्चन, आप इंस्टीट्यूट को किस तरीके से देखते हैं कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में पब्लिक सर्विस के एरिया के अंदर और क्या बेटर काम कर सकती है? जी, सो एज ए CA आपको सिविल सर्विसेज में क्या हेल्प मिल सकता है, या आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री आपको पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन में क्या हेल्प कर सकती है? सो उसमें आई वुड लाइक टू से वन थिंग. जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस दौर में हम कई पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने आप में इनकलकेट कर लेते हैं. वन ऑफ द ट्रेट इज़ डिसिप्लिन. वी आर डिसिप्लिन. वी have the exposure and understanding of complex
कॉर्पोरेट लॉस, टैक्स लॉस, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाती है. Then we have the analytical ability to understand things, because all these things, all these traits help you in your civil services examination preparation. आपका दूसरा क्वेश्चन जो था कि CA कमिटी, मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी किस तरह से और आगे इस ऑब्जेक्टिव को आगे ले जाने में मतलब हेल्प कर सकते हैं हम उसकी. सो बेसिकली द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम अभी जो कमेटी ऑर्गेनाइज कर रही है, इट्स रियली वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू पीपल आर डूइंग एज अ कमिटी थिंग. बिकॉज जैसे कि आपने खुद नहीं बताया कि यू वर नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एग्जाम, एंड ये एग्ज़ाम सालों से कंडक्ट हो रहा है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, कई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट नॉट एट मास स्केल, लोगों को पता ही नहीं था. बट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, द मेंटरशिप प्रोग्राम, helps us to understand the kind of exposure and the kind of opportunity that are available in the government domain, जहाँ पे हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि देर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू. So members in public service committee, already you have taken this good initiative and you are doing it in nationwide mode. So I would request you to continue to do this thing and continue to inspire the student by organizing this kind of programs. Thank you so much, Sunil Sahu sir, for sparing your valuable time and addressing the questions which are being asked. And I'm sure the viewers will certainly be get benefit out of your experience and your suggestion. And I look forward that most of the people can come forward for Indian Cost Accountant Services. And I would request that you please have a mentorship and hand holding to all our students, all our members who will be pursuing for My Indian Cost Accountant Services. Thank you very much. Thank you so much.